Sir, I would like to know from the Honorable Minister, are there any plans by the Ministry to include some of the beach stations to develop under this capital investment development of tourism centers in Andhra Pradesh? And, sir, under temple tourism, how many places have been identified in Andhra Pradesh for development under this scheme, sir? Thank you. Thank you, sir. धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, tourism is a stateless subject, so primarily the project proposals are to be identified. The projects are to be identified and proposals are to be developed by the state governments. So that beach tourism, if any project is being deemed fit by the state government, they can send the project proposals to the government under the various schemes which are available. Looking towards the finances and the scope, we consider the projects and then we grant the assistance. As far as the Prasad scheme is concerned, which Honorable Member have mentioned about, there are 4 projects in Andhra Pradesh under the Prasad scheme have been sanctioned so far. Development of pilgrim amenities at Amravati, development of Sri Sailam temple, development of pilgrimage amenities at Sri Vardha Lakshmi Narsimha Swami Vari Devasthanam at Simhanchala, development of pilgrimage tourism infrastructure at Annavaram temple town. These projects are all of these projects are complete and financial progress is bearing development of pilgrimage tourism infrastructure at Annavaram temple. All the projects are complete and financial assistance have been provided 100%. Thank you. Professor Manoj Kumar Jha. शुक्रिया माननीय उपसभापति महोदय। इस प्रश्न में आग्रह का समावेश ज़्यादा है प्रश्न से। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, हमारे बिहार में बुद्धिस्ट सर्किट, जैन सर्किट के अलावा जो शक्ति के केंद्र हैं, क्या उसके लिए बिहार सरकार की ओर से कोई प्रपोजल आया है? अगर नहीं तो क्या केंद्र प्रोएक्टिव होकर के इस पे कुछ पहलकदमी का विचार कर रहा है? थैंक यू। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य के विचार का सम्मान करते हुए, जैसा मैंने पूर्व प्रश्न के उत्तर में कहा कि किसी भी प्रोजेक्ट को प्राइमरीली स्टेट को कंसीव करना होता है। इस तरह का प्रोजेक्ट प्रपोजल अगर बिहार स्टेट से आता है तो निश्चित रूप से उसको कंसीडर किया जा सकता है। उसे तय नियमों की प्रक्रिया में यदि वो समाहित होता है तो उसे कंसीडर किया जा सकता है। माननीय संसद सदस्य भी जब इस विषय में या इस तरह के विषय में सीधे भारत सरकार को या मुझे इस तरह के पत्र लिखते हैं तो भी हम तय प्रक्रिया के अनुरूप राज्य सरकार को उसके कंसिडरेशन के लिए राज्य सरकार को भेजते हैं। इस तरह का कोई पत्र यदि प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से हम राज्य सरकार को उसे भेजने में हम सबको प्रसन्नता होगी। माननीय साकेत गोखले। Thank you, sir. So the question is about the special assistance to states for capital investment, the SASCI scheme. So under this scheme, sir, the union government has given 172 crores to Andhra Pradesh, 147 crores to Bihar, 151 crores to Gujarat, 200 crores to Madhya Pradesh, and 154 crores to Uttar Pradesh. This is according to an answer tabled by the Honorable Minister in the Lok Sabha. So not a single rupee has been given to the state of West Bengal, and the union government has not covered. No, let me come to my question, sir. The union government has not covered a single tourism site in Bengal under this. So my question overall to the minister is, please state why the union government is constantly ignoring Bengal and giving a stepmotherly treatment when it comes to giving union government funds, not just funds we deserve, but also our dues from the central government. Thank you. माननीय मंत्री। मैं अत्यंत खेद के साथ में एक विषय को कहना चाहता हूँ। माननीय सदस्य ने अभी खड़े होकर के भारत सरकार की मंशा के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की प्रयास किया है। माननीय सभापति महोदय, हमने 4 बार वेस्ट बंगाल सरकार को लिखित में भेजा, मैंने व्यक्तिगत रूप से बात की, उसके बाद में भी बंगाल सरकार से प्रोजेक्ट प्रपोजल नहीं भेजा गया। प्रोजेक्ट प्रपोजल नहीं भेजा गया। और जैसा मैं कह रहा हूं कि प्रोजेक्ट प्रपोजल राज्य सरकार को भेजना होता है,
मुझे लगता है कि स्टेप मेथडली ट्रीटमेंट भारत सरकार नहीं कर रही है, कहीं और से इस तरह का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, अपने इसमें घूम करके देखना चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर भागवत कराट। Honorable Deputy Chairman Sir, through you, I ask to Honorable Minister, कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम के माध्यम से नाइट टूरिज्म और हिली टूरिज्म के लिए कुछ फंड्स दिए हैं क्या, इसके मैं जानना चाहता हूँ। नाइट टूरिज्म और हिली एरिया टूरिज्म। माननीय सभापति महोदय, जो स्पेशल असिस्टेंस स्कीम के तहत जो प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए, उन प्रोजेक्ट्स में हमारे हिमालयी क्षेत्र में भी निश्चित ही हमने प्रोजेक्ट्स को कंसीडर किया है। नाइट टूरिज्म का स्पेसिफिक कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल हमारे पास में मेरे संज्ञान में अब तक नहीं आया है, लेकिन फिर भी रात्रि में कहीं टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर या रात को कहीं टूरिज्म ग्रो करने के लिए या किसी तरह की सफारीज ग्रो करने के लिए अगर इस तरह के प्रस्ताव आएंगे तो तय नियमों पर उस पर हम विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, माननीय श्री आदित्य प्रसाद। माननीय मंत्री जी, पटेल पर रखा गया। पहला सप्लीमेंट्री आदित्य जी। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से मैं जानना चाहता हूं कि झारखंड में अब तक स्वीकृत 8 मोबाइल टावरों में से एक भी टावर स्थापित नहीं किया गया है। इसके क्या कारण है? नियोजित टावरों में कार्य की शुरुआत कब होगी? क्या इन सभी टावरों की स्थापना के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? थैंक यू। माननीय मंत्री जी। सर, सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सदन के समक्ष रखा है। मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं सर कि पहली बार देश में एक ऐसी सरकार आई है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिसने समस्त आदिवासी समाज के केवल गांव नहीं लेकिन टप्परों का भी विकास का सर्वांगीण विकास की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री जन मन योजना 25,000 गांव एवं टप्परों को लेकर आदिवासी बाहुल क्षेत्र में, वहां केवल दूरसंचार की सुविधा नहीं सर, पर उसके साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सैनिटेशन, संपूर्ण पेयजल की समस्या का निवारण, संपूर्ण समस्या होलिस्टिक सॉल्यूशन सर, इन 25,000 गांवों के लिए कैबिनेट ने योजना नवंबर 2023 में पारित किया। 24,000 करोड़ रुपए का सर आदिवासी समाज के लिए। और उसी के अंतर्गत हमारे सहभागी मंत्रालय आदिवासी मंत्रालय ने एक सूचना हमें भेजी जुलाई 2024 में, मतलब कि केवल 6 महीने हुए हैं, गांव की लिस्ट के साथ जहां दूरसंचार की टावर्स की जरूरत है। उसका सर्वे दूरसंचार मंत्रालय के द्वारा किया गया और सर्वे के अंतर्गत सर हम लोग ने 2,590 गांव चिन्हित किए, जहां 1,716 टावर्स हम लोग लगाने जा रहे हैं। ये 15 राज्यों में हैं और 3 स्कीम्स के अंतर्गत हैं। इसमें जैसे मैंने कहा सर, केवल गांव शामिल नहीं है, मजरे टोले भी शामिल हैं सर। और कई गांव और मजरे टोलों में अभी भी लैटलॉन्ग की कठिनाई हो रही है, यूनिक सेंसस कोड नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मुझे बड़ी खुशी है आपको रिपोर्ट करते हुए सर कि इन 2,590 गांव में से 901 गांव में हमारे टावर लग चुके हैं। 1,716 टावर्स में से 519 टावर्स लग चुके हैं। मतलब 6 महीने के अवधि में जुलाई जो 2024 से आज तक सर्वे हो चुका, रेखांकित हो चुके और टावर्स भी लग चुके। 35% रिकॉर्ड टाइम में हमने किया। इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है तीसरा टर्म, मतलब 3 गुना ज्यादा मेहनत, 3 गुना ज्यादा शक्ति और 3 गुना ज्यादा रिजल्ट। और यही दूरसंचार मंत्रालय ने भी करने की कोशिश की है। जहां तक झारखंड की बात की गई सर, वहां जरूर हम लोग ने केवल 8 टावर्स नहीं लेकिन समूचे राज्य के लिए 1,987 टावर्स रेखांकित किए हैं। 2,471 गांव में 8 टावर जो बचे हुए हमारे मजरे टोले हैं उनके लिए रेखांकित किए हैं। 3 कठिनाइयां हैं सर। एक लैंड की कठिनाई है, झारखंड सरकार थोड़ी लेट लतीफी कर रही है जमीन देने के लिए, टावर लगाने के लिए। राइट ऑफ वे की प्रॉब्लम है और उसी के साथ
कुछ लोकेशंस इनएक्सेसिबल हैं, लेकिन फिर भी हम लगे हैं। अगर सांसद महोदय भी हमें मदद करें तो हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि झारखंड के गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नेटवर्क कवरेज के विस्तार के लिए क्या कोई अतिरिक्त बजटीय प्रावधान किया गया है, चूंकि उन क्षेत्रों में लोगों को मोबाइल से बात करने में बहुत कठिनाई होती है। धन्यवाद। Thank you, sir. So not only in Jharkhand, all the left-wing affected areas, sir, we have two schemes. One with 2,400 crores that was started in May 2024, and then left-wing affected areas number 2 with 2,200 crores that was started in October 21, sir. Both of them are supposed to be completed middle of 2025. So this includes all the left-wing affected areas, not only the Jharkhand. Thank you. थैंक यू। माननीय रणदीप सिंह सुरजेवाला। शुक्रिया चेयरमैन सर। सर, मोबाइल टावर्स अल्टीमेटली यूजेज और अफोर्डेबिलिटी से जुड़े हुए हैं। उपसभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या उनके संज्ञान में है कि हाल में ही 3 जुलाई 2024 को सभी सेलफोन कंपनीज ने एक कंसर्टेड तरीके से मोबाइल टैरिफ्स को बढ़ाया, जिससे मोबाइल ग्राहकों को, जो इनकी संख्या लगभग 119 करोड़ है, 34,800 लगभग 119 करोड़ है, 34,824 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा। क्या सरकार ने इसका संज्ञान लिया है? क्या सरकार मोबाइल टैरिफ्स की कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से टैरिफ बढ़ाने की इस प्रक्रिया पर कोई रोक लगाएगी और क्या इसका संज्ञान लेगी? धन्यवाद रणदीप जी। मैं रणदीप जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया सदन के पटल पर और सदन के द्वारा देश की जनता को सूचित करने के लिए कि पिछले 10 साल की अवधि में देश में दूरसंचार का वातावरण में क्या बदलाव आया है, क्या क्रांति आई है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और मैं उदाहरण देना चाहता हूं सर, मोबाइल की कनेक्टिविटी में हमारे पास 2014 में 90 करोड़ ग्राहक थे। प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज जयराम जी, नो नो नो, दिस इज नॉट। प्लीज आप सीट पर बैठ कर ना बोलो, प्लीज। सर, माननीय मंत्री जी, आप सर जयराम जी को खुजली बहुत आती है सर। प्लीज, बहुत खुजली आती है सर। प्लीज नहीं, प्लीज। और मुझे विश्वास है सर, आप नथिंग, मुझे विश्वास है सर कि मुझे विश्वास है कि मेरे भाई और दोस्त रणदीप जी अपना सुरक्षा अपने आप कर सकते हैं। आप सवाल सर, मैं बता रहा था सर कि 90 करोड़ ग्राहक थे, आज 116 करोड़ ग्राहक है दूरसंचार क्षेत्र में मोबाइल के सेवा में। अगर हम इंटरनेट पेनिट्रेशन की बात करें सर, 25 करोड़ ग्राहक थे 2014 में, आज करीब 97.4 ग्राहक। मैं वहां आ रहा हूं रणदीप जी। थर्ड सर, ब्रॉडबैंड की हम बात करें जो 2 Gbps की से ज्यादा होती है कनेक्टिविटी, केवल 25 करोड़ ग्राहक थे 140 करोड़ के देश में, आज वो बढ़कर 92 करोड़ हो चुका है देश के अंदर सर। और जरूर जब ये नंबर बढ़ते हैं तो दाम पे भी पूरी तरह से निगरानी रखना बहुत जरूरी है, जो रणदीप जी ने कहा। और मैं उनको सूचित करना चाहता हूं, 2014 में 1 मिनट का कॉल मोबाइल पर 50 पैसे लगता था सर। आज 2024-25 में सर, 10 साल बाद 1 मिनट का कॉल 3 पैसे लेता है सर, 3 पैसे। मतलब 94% गिरावट आई है कॉस्ट स्ट्रक्चर में। प्लीज नो नॉट रणदीप जी, प्लीज बैठे। 94% गिरावट आई। और मैं उनको सूचित ये भी करना चाहता हूं कि जो ब्रॉडबैंड 1 GB
की कॉस्ट 2014 में होती थी 270 रुपए पर जीबी होती थी। आज सर 10 साल बाद पर जीबी कॉस्ट इस देश के अंदर 9 रुपए 70 पैसे है सर। 93% गिरावट आई है। आज भारत सर, मैं बताना चाहता हूं, आज भारत पूरे विश्व में, आपको कोई इजाजत नहीं बोलूंगी प्लीज सर, आज भारत पूरे विश्व में सबसे किफायती देश है डेटा के आधार पर, पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और जहां तक जो संदर्भ रणदीप जी दे रहे हैं, क्योंकि स्पष्टता से मैं जवाब आपको सदैव देता हूं, जरूर 10% की इंक्रीज हुई है कॉस्ट स्ट्रक्चर में। वो क्यों हुई है सर? अगर टेलीकॉम कंपनीज आज देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबसे फास्टेस्ट रोल आउट 5G का पूरे विश्व में भारत में हुआ है सर। 22 महीने में 98% डिस्ट्रिक्ट्स और 82% पॉपुलेशन 5G की कवरेज हुई है। मतलब क्या सर? मतलब ये कि 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। तो अगर 4.5 लाख करोड़ का निवेश हो तो क्या जो लोग निवेश कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा रिटर्न नहीं होना चाहिए? और अगर कॉस्ट कॉल का 3 रुपए से 3 पैसे से 3.5 पैसे हो चुका तो अल्टीमेटली रिटर्न भी तो होना चाहिए। जो आज डेटा और वॉइस पे सबसे चीपेस्ट, प्लीज टेक योर सीट सर, आज वॉइस और डेटा में सबसे चीपेस्ट आज भारत है पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। डॉक्टर सस्मित पात्रा, 4th supplementary. Honorable Deputy Chairman, sir, my specific question to the Honorable Minister has a brief preface and I'll be quick. Odisha is home to the largest number of particularly vulnerable tribal groups in India. And the answer also says that PVTG is probably a part of the habitation. So out of the 426 habitations, 61 have been completed. My question is, how many of these habitations belong to particularly vulnerable tribal groups in Odisha? How many have been completed? And by when all of it would be completed? Thank you. Thank you. Mani Mantri. Sasmit Bhai has asked a very pertinent question, and it goes back to the answer I gave in response to the first supplementary. The Prime Minister has very clearly resolved that all PVTG habitations must get full infrastructure, not only telecom infrastructure, but all social infrastructure, all physical infrastructure. And this is very much a part of that. 2595 habitations have been planned, 1716 towers have been planned, out of which the Orissa number here today is 331. All these 331 towers in 426 habitations are all PVTG. There is not a single one which is not PVTG. The total number of towers in Orissa is 4,511, covering 6064 habitations. But of that, the subset is 331 towers covering 426 habitations, all PVTG. And it's a commitment to do this as soon as possible. Yes, there are right-of-way issues. There are some areas where we have issues with regard to land allocation, but we are working at that to complete it as soon as possible. Dr. Sumer Singh Solanki. Dr. Sumer Singh Solanki, 5th supplementary and last. धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय नर्मदे हर। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संचार क्रांति भारत देश में आई है। मैं मध्य प्रदेश के उस पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र से आता हूं, जहां पर नेटवर्क की समस्या धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र में जो नेटवर्क के लिए टावर लगाने का काम किया जा रहा है और साथ ही आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों को निरंतर संचार की सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है, ये कब तक पूर्ण हो जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर? धन्यवाद। सांसद महोदय को मैं आश्वस्त कराना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के लिए जो हम लोग ने आवंटित किए हैं, कुल मिलाकर 2202
गांव जहां 1650 टावर्स लगाए जाएंगे, उसमें से वर्तमान में 981 गांव में 773 टावर ऑलरेडी लग चुके हैं। और जहां तक हमारा आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, वहां 138 टावर करीब करीब 160 गांव में लगाने का हम लोगों का निर्णय लिया गया है और शीघ्र ही शीघ्र इसे कंप्लीट किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जुलाई 2024 में ही इनकी पूरी सूचना लिस्ट हमें आदिवासी मंत्रालय से हमें मिला है। हमने सर्वे भी कर लिया है और कार्य भी प्रगति पर है। जल्द से जल्द हम लोग इसको खत्म करेंगे, रिकॉर्ड टाइम में हम लोग खत्म करेंगे। माननीय श्री धैर्य सिंह पाटिल। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 34 उत्तर सदन के पटल पे रखा है। पहला सप्लीमेंट्री धैर्यशील जी। आदरणीय सभापति महोदय, पंढरपुर की वारी जो 1000 सालों की जो परंपरा है, उसको यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में स्थान मिलने के लिए अध्यक्ष महोदय, ये मेरा प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, पंढरपुर की वारी जो पंढरपुर तीर्थ क्षेत्र के यात्रा रहती है और 1000 सालों से अध्यक्ष महोदय चली आ रही है। अनेक जाति, धर्म, पंथ, प्रांत, इस भेदाभेद को भेदते हुए अध्यक्ष महोदय समता और एकता, बंधुता का पाठ पढ़ाते हुए 10 लाख वारकरी संप्रदाय के भक्त लोग महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ गांवों से, अध्यक्ष महोदय कर्नाटक के गांवों से ये चले आते हैं। अध्यक्ष महोदय, वारकरी संप्रदाय की ये परंपरा ने संत नामदेव, संत ज्ञानोबा राय, संत एकनाथ महाराज, संत तुकोबा राय, इसके जैसे संतों ने अपने विचारों से ये महाराष्ट्र की भूमि को परिपोषित किया है। आज का जो प्रगतिशील और उन्नत सामाजिक महाराष्ट्र दिखता है, उसका कारण पंढरपुर की वारी और वारकरी संप्रदाय ने जो सिखाया हुआ बंधुता और न्याय का अध्यक्ष महोदय पाठ है। सवाल अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि सांस्कृतिक दृष्टया और सामाजिक दृष्टया उन्नत ये संस्कृति, ये परंपरा, इसका यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में समावेश होने के लिए केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय कुछ कदम उठाएगी क्या? ये मेरा अध्यक्ष महोदय प्रश्न है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। भारत की संस्कृति जो विविधताओं से भरी हुई है, उसमें अनेक तरह की ऐसी परंपराएं हैं, ऐसी रीतियां हैं, ऐसे उत्सव हैं और अनेक तरह के ऐसे आयोजन हैं जो सदियों से प्रथा में जो है वो अपनाए जा रहे हैं। और निश्चित ही ये सब इस तरह के आयोजन विविधताओं में बसे हुए भारत को एकता का स्वरूप प्रदान करते हैं। माननीय सभापति महोदय, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में इंक्रिप्शन की एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें प्रपोजल या तो राज्य सरकार, भारत सरकार को, या सीधे संगीत नाटक अकादमी जो ICH की नोडल डिवीज़न है उसको भेजती है। उसके बाद नोडल एजेंसी उसको रिव्यू करती है। रिव्यू करने के बाद उस पर जो है नेशनल इन्वेंट्री लिस्ट जो है सूची उसमें समाहित किया जाता है और उसके बाद में उसको जो है भारत सरकार की तरफ से यूनेस्को को नामित किया जाता है। अब तक भारत सरकार के प्रयासों से 15 ऐसे हमारे कल्चरल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को इस सूची में समाहित किया गया है। आने वाले वर्ष के लिए, क्योंकि इसमें व्यवस्था के अनुरूप 2 साल में एक देश एक ही प्रपोजल मूव कर सकता है, मैं माननीय सदस्यों के और आपके माध्यम से देश के संज्ञान में लाने के लिए कि इस वर्ष के प्रपोजल के रूप में 2023 में जो हमने सबमिट किया है, जिसको 2025 में जिसे कंसिडर करके इंस्क्राइब किया जाएगा, हमने दिवाली फेस्टिवल जो भारत को एकता के सूत्र में बांधता है उसे इंस्क्राइब करने के लिए नामित किया है। आने वाले समय में इस तरह के और प्रपोजल्स जो भारत सरकार के संज्ञान में लाए जाते हैं या लाए जाएंगे, उन सब को इस प्रक्रिया के तहत ला करके हम आने वाले समय में नामित किया जा सके, इसके लिए निरंतर काम करें। माननीय धैर्यशील जी, सेकंड सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, इस वारकरी संप्रदाय की जो परंपरा है,
जो शिकवण है वो काव्य स्वरूप में जो बताई जाती है उसको अभंग कहते हैं, अभंग परंपरा रहती है। अध्यक्ष महोदय, उत्तर में संत तुकाराम महाराजों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराजों का जो अभंग परंपरा है उसको संरक्षण मिलने के लिए उसका डिजिटल दस्तावेजीकरण करने का कोई प्रस्ताव केंद्र शासन का सांस्कृतिक मंत्रालय कुछ करेगा क्या? उसके लिए कुछ रचनात्मक उपाय करेंगे क्या और वो क्या रहेंगे? धन्यवाद। महोदय, हमारी ऐसी सारी संस्कृति के विभिन्न अंग उपांग जो समय के साथ में कहीं विलुप्त हो रहे हैं या क्षीण हो रहे हैं, उन सब को समर्थन करने के लिए अनेक तरह के प्रयास करती है। इस फेस्टिवल जिसके बारे में माननीय सदस्य ने अभी हम सबके सामने इस प्रश्न को रखा है, संगीत नाटक अकादमी ने संत तुकाराम महाराज भवन में स्थानीय प्रशासन के साथ में और मंदिर ट्रस्ट के साथ मिलकर के हमने जो है एक कार्यक्रम का आयोजन जगत गुरु प्रवाह नाम से किया, जो है इसके साथ में किया था। इसके अतिरिक्त भी इस तरह के प्रपोजल्स, डिजिटाइजेशन के प्रपोजल माननीय सदस्यों के संज्ञान में आया होगा कि भारत सरकार के अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पढ़ा है उसमें भी हमने इस तरह की सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हमारी धरोहर हैं, हजारों साल की लिखित धरोहर जो है, उन सब को भी डिजिटाइज करने के लिए काम किया है। आने वाले समय में उपलब्ध संसाधनों की सीमितता के साथ में उसको संज्ञान में रखते हुए इस तरह के सारे विषय जो हैं उनको हम अमूर्त ऐसी हेरिटेज को हम डिजिटाइज करके संरक्षित कर सकें, इस पर काम करें। धन्यवाद। थर्ड सप्लीमेंट्री, माननीय रजनी पाटिल जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमारे महाराष्ट्र के लिए हमारे सदस्य ने उठाया है। हम उस इलाके से आते हैं और हमारे यहाँ जब पंढरपुर की वारी होती है वो कोई फेस्टिवल नहीं होता। मैं मंत्री जी को करेक्ट करना चाहती हूँ, वो 15-20 दिन वो लोग चलते रहते हैं सब जगह से, रूरल एरिया से, और चलते 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 वो पंढरपुर तक आते हैं। और वहाँ पे पहली बार हिंदुस्तान में शायद पहली बार जातीय निर्मूलन का जो मंत्र है, मूल मंत्र, वो वहाँ रचा गया था, क्योंकि वहाँ पे जात पात कुछ नहीं होता है। तो इसके लिए अगर आपकी तरफ से पहल करके गया, क्योंकि वो सब लोग वारकरी होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं, सिंपल लोग होते हैं, तो उसके लिए आप कुछ कोशिश करेंगे तो हम सब लोग साइन करके देने के लिए तैयार है, लेकिन उसको महत्व देना जरूरी है और उसको ये लिस्ट में लाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। सवाल आपका, तो ये करेंगे क्या? धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैंने मूल प्रश्न के उत्तर के समय में भी निवेदन किया था कि भारत की संस्कृति में अनेक ऐसे उत्सव हैं। माननीय सदस्य ने कहा, मैं सम्मान करता हूं कि पंढरपुर की वारी जो है वो जाति उन्मूलन से परे है और जाति उन्मूलन का संदेश देती है, जाति विभेद को मिटाती है। माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य ने भी इस बात का उल्लेख अपने प्रश्न में किया है। मैंने कहा था, मैंने निवेदन किया कि कुंभ का फेस्टिवल, हिंदुस्तान में ऐसे अनेक ऐसे उत्सव हैं जहां जातीय विभेद समाप्त हो जाता है। अभी महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, जहां कुल 45 दिन में लगभग 45 करोड़ लोग आएंगे। न कोई किसी से जाति पूछता है, न कोई किसी के समाज का भेद पूछता है, न कोई पूजा पद्धति की चर्चा करता है, न वहाँ कोई उसके न उस विषय में कोई वहाँ किसी की सामाजिक हैसियत के बारे में प्रश्न करता है। सभी लोग साथ खड़े होते हैं। ऐसे अनेक उत्सव देश भर में अनेक जगहों पर इस तरह के उत्सव आयोजित होते हैं जहां जाति, समाज, वर्ग, पूजा पद्धति, इन सब का भेद मिटा करके लोग आस्था के भाव के साथ में वहां एकत्रित आते हैं। और हम सब उन उत्सवों को, चाहे वो किसी भी रूप में हो, पैदल यात्रा के रूप में हो या अन्य किसी रूप में, उन सबको हम फेस्टिवल्स के रूप में देखते हैं। निश्चित ही ऐसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स पर को हम सब लोग और अधिक सपोर्ट करें, इस पर निरंतर प्रयास करते हैं। मैंने जैसा कहा कि संस्कृति मंत्रालय इस फेस्टिवल के साथ में जुड़ करके स्थानीय प्रशासन और मंदिर प्रशासन के साथ मिलकर के हमारे स्कोप ऑफ द वर्क में जितने विषय हैं उन सब के ऊपर निरंतर हर बार काम करता है और भी आगे इस विषय में काम करेंगे। इस प्रपोजल की प्रक्रिया जो मैंने आप सबके सामने रखी है, प्रपोजल की प्रक्रिया के पहले चरण में अभी इस तरह का प्रपोजल प्राप्त हुआ है। इस पर आगे विचार होने के बाद में जिस तरह से निर्णय होगा, उस निर्णय को आने वाले भविष्य में हम सब लोग आपके सामने साझा कर सकेंगे। डॉक्टर अजीत गोपछड़े। धन्यवाद उपसभापति महोदय।
महाराष्ट्र में स्थित भगवान गौतम बुद्ध की अजंता एलोरा गुफाएं और परम पूज्य महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की कर्मभूमि संभाजीनगर, मराठवाड़ा के 3 ज्योतिर्लिंग, नांदेड़ में परम पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की पुण्य पावन भूमि और संघ के परम पूज्य आद्य सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार जी का मूल गांव कंदकुर्ती है। सरस्वती का बासर का मंदिर है। बीदर में गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा है। नरसिंह भगवान की गुफाएं तथा तुलजा भवानी माता को जोड़ने वाला प्राचीन कालीन शालिवाहन कालीन कॉरिडोर, ये सांस्कृतिक विकास करने हेतु मैंने आपको निवेदन दिया था। माननीय मंत्री जी से मेरा ये प्रश्न है कि यह शालिवाहन कालीन कॉरिडोर हमारे महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य में क्या सांस्कृतिक मंत्रालय इसके लिए कुछ आगे कदम बढ़ा रहा है क्या? धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि प्रश्न मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है, उसके मंत्रालय से भी संबद्ध प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन मैंने पिछले पर्यटन मंत्रालय के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि इस तरह के सारे प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, क्योंकि राज्य सरकार का विषय होने के नाते राज्य सरकार से आते हैं। माननीय सदस्य ने मुझे पत्र लिखा था, मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में लाने के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि वो हमने महाराष्ट्र सरकार को भेजा है। आप महाराष्ट्र सरकार से चर्चा करके इस तरह के प्रोजेक्ट प्रपोजल को जब भारत सरकार में राज्य की तरफ से प्रेषित किया जाएगा तो तय स्कीम्स में निश्चित रूप से उन पर विचार किया जाता है, आगे भी उस पर विचार हो। 5वां सप्लीमेंट्री, माननीय श्री निरंजन विसी। माननीय निरंजन विसी। I would like to know from Honorable Minister that whether government has planned to include the natural heritage site and cultural heritage site like Gandhamardan mountain range, Bhim Pahad hills, Chandeli Pahad hills of Balangir district in the state of Odisha. माननीय निरंजन जी, ये सवाल जुड़ा है संत तुकाराम वारी पंढरपुर से। in the UNESCO heritage। आपका सवाल अलग है, प्लीज। थैंक यू। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। आपने दूसरा सवाल पूछा, इससे संबंधित कोई सवाल हो तो आपको पूछने की इजाजत मैं दे सकता हूँ। पंढरपुर पर संबंधित। थैंक यू। माननीय राजीव सुख, अंतिम सप्लीमेंट। सर, मंत्री जी ने, और इसमें मैंने देखा कि यूनेस्को की लिस्ट के बारे में बात की, इसी तरह से जो यूनियन हेरिटेज लिस्ट उसके बारे में बात की। अगर हम कोर वाट को देखो, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट वहाँ जाते हैं। वहाँ हमारे यहाँ तो एक से एक धरोहरें हैं, एक से एक त्यौहार हैं। दिवाली के लिए उन्होंने बताया शामिल कराने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। होली, दिवाली, वसंत पंचमी सब जगह मनाई जाती। तो इन सारे के लिए हमारा कोई प्रयास मंत्री जी जानना चाहते हैं क्यों नहीं होता है। आप मीनाक्षी टेम्पल देखिए, वहाँ का, मदुरै का, क्यों नहीं यूनियन हेरिटेज लिस्ट में आ सकता है। लेकिन सर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो अगर ये इस तरफ प्रयास किया जाए, आपने जो शुरू किया है, तो और किन किन धरोहरों को ले सकते, कौन कौन त्योहार पे ले सकते, जैसे पंढरपुर वाले के बारे में आपने सवाल पूछे। क्यों बोलते यार, मेरी समझ नहीं कि हमारी पार्टी में या हमारी पार्टी से बाहर है, हमेशा अपने मेंबर को हमेशा ये करने की कोशिश करते हैं, रिडिक्यूल करने की। ये कौन सी बात है? पूरे हाउस को याद दिलाते हैं कि सवाल पूछे, आप आपको भी गलत बात है। तो इसका मैं जानना चाहता हूँ कि इस तरह अगर यूनियन हेरिटेज लिस्ट वो इसमें है, इसमें जवाब में है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। और यूनेस्को लिस्ट में आप कौन कौन भारतीय धरोहरों को शामिल कराने का प्रयास करें? धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, क्यों करते हो, सब बाद में बोलते। माननीय सदस्य की भावना का सम्मान करते हुए, दोनों सदस्यों की भावना का सम्मान करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि टेंजिबल और इंटेंजिबल इन दोनों सूचियों में दर्ज कराने के लिए, टेंजिबल हेरिटेज की सूची में दर्ज कराने के लिए एक देश एक साल में एक ही प्रपोजल जो है वो भेज सकता है। एक देश का एक ही प्रपोजल। माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, प्रश्न पूछने के बाद में शायद वो एक दूसरे के साथ में अभी तक व्यस्त है प्रश्न के काल से लेकर के आपका उत्तर। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय दोनों सदस्यों को ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में सामंजस्य के लिए बहुत बड़ा स्थान है। टेंजिबल हेरिटेज एसेट जो है उसमें साल में एक प्रपोजल एक देश मूव कर सकता है। और जैसा माननीय सदस्य ने कहा, अंकुर वाट की चर्चा की, मैं सदन और देश के संज्ञान में लाने के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार की एएसआई ने, माननीय विदेश मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, उनका धन्यवाद करता हूं कि विदेश मंत्रालय के द्वारा प्रदत्त संसाधनों के आधार पर हमने अंकुर वाट टेम्पल को रिस्टोर करने का काम किया है।
लेकिन इसके अतिरिक्त भी भारत में इतने सारे इस तरह के टेंजिबल एसेट्स हैं, हमारे पास में इतनी धरोहरें हैं कि हम एक साल में 21 जो लिमिटेशन के अंतर्गत जो सूची तय होती है, क्योंकि बहुत लंबी नेशनल लिस्ट हमारे पास में, उन सबको जो है सूचीबद्ध कराने का प्रयास करते हैं। पिछले 4-5 साल से लगातार हर साल एक धरोहर हमारी सम्मिलित होती है। इस बार भी जो है 2024 में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की भारत में हुई मीटिंग में भी हमारे असम के मोइदाम्स को जो है वर्ल्ड हेरिटेज सूची में समाहित किया। इसके अतिरिक्त इंटेंजिबल एसेट्स के दृष्टिकोण से जैसा मैंने कहा कि 2 साल में एक इंस्क्राइब कराने का हमारे पास में अवसर होता है, लेकिन ऐसे मल्टीलैटरल जो है हेरिटेज लिस्ट, जो उनको अगर हम चाहें तो एक बार में उसके लिए कोई समय सीमा या कोई नंबर्स की सीमा नहीं है। नवरोज फेस्टिवल को पहले भारत सरकार ने नामित करके इस तरह की इंटेंजिबल एसेट में लिया था, और ऐसे इंटेंजिबल हेरिटेज हमारी एसेट्स जो हैं उनको इंस्क्राइब कराने के लिए जो मल्टीलैटरल एसेट्स हैं उनके लिए भी भारत सरकार लीडरशिप लेके क्वेश्चन और ओवर। धन्यवाद। Further discussion on the motion moved by Srimati Kiran Chaudhary on the 3rd February 2025 and amendments moved thereto. On the 4th February 2025, Sri Devendra Pratap Singh had not concluded his speech while participating in the discussion. Therefore, I call upon Sri Devendra Pratap Singh to continue his speech on motion of thanks on the President's address. Maniya Devendra ji, please. माननीय उपसभापति जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पुनः मुझे समय दिया। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और भविष्य की दिशा का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। यह संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें देश की प्रगति को समाहित किया जाता है। माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में किसान और कृषि को बल दिया है। माननीय सभापति जी, कल परसों मैं आदरणीय सांसद श्रीमती रंजीत रंजन जी को सुन रहा था, और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि किसान आजकल आत्महत्या कर रहे हैं और बदहाल स्थिति में हैं, मैं आपके माध्यम से उन्हें ये बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में किसान परिवार से आने वाले लोग ने खेती के वो कठिन दौर भी देखे हैं कांग्रेस के समय के, जब कड़ी मेहनत से धान उपजन के बाद किसान भाई मंडियों में धान लेकर जाते थे और उन्हें औने पौने दामों में बेचना पड़ता था। उस समय किसानों को के परिवार भरण पोषण करने अत्यंत कठिन होता था। खरीफ फसल के बाद उनके पास राज्य में अन्य राज्यों में जाकर मजदूरी करने के अलावा और कोई काम नहीं रहता था। श्रद्धेय अटल जी ने जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया तो धान खरीदी की एक व्यवस्था शुरू की गई। यह सुनिश्चित किया गया कि जिस छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना की भी आरंभ की गई। यह कार्य इतना व्यवस्थित तरीके से हुआ कि छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा का मॉडल राज्य बन गया। मुझे याद है छत्तीसगढ़ बनने के शुरुआती दौर में धान खरीदी लगभग 4.63 लाख मैट्रिक टन थी, लेकिन पिछले बार यह आंकड़ा 145 लाख मैट्रिक टन तक पहुंच गया। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमारी सरकार ने किसान भाइयों को धान का उचित मूल्य प्रदान किया है। हमने किसानों से 3100 रुपया प्रति कुंटल तथा 21 कुंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदा है। किसानों से किए गए वादे के अनुरूप हमने 13 लाख किसानों को 2 वर्षों का बकाया बोनस भी दिया। इन सभी प्रयासों से परिणाम स्वरूप पिछले सत्र में
हमने किसान भाइयों के खाते में 49,000 करोड़ रुपया अंतरित किए हैं। लगभग 2.5 महीने से राज्य में तेजी से धान खरीदी जारी है। हमारे किसानों के खातों में लगातार समर्थन मूल्य की राशि भेजी जा रही है। प्रति क्विंटल की अंतर की राशि 800 रुपया हमारी सरकार द्वारा इनपुट सहायता के रूप में एक मुश्त फरवरी माह में किसान भाइयों के खाते में भेजने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए हमने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की भी शुरुआत की है। इस योजना के तहत 5,62,000 भूमिहीन कृषकों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपया प्रदान किया जा रहा है। यह हमारे शुभ संकल्पों और अच्छी नीयत का परिणाम है। आज छत्तीसगढ़ में किसान बेहद खुशहाल है। प्रदेश में पलायन रुका है और किसान खेती में निवेश कर रहे हैं क्योंकि उनके खेत से अच्छी आय मिल रही है। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से, आपका समय खत्म होने वाला है, आप कंक्लूड करें। जी जी सर, मेडन स्पीच से 2-4 मिनट बढ़ा के। ना ऑलरेडी आप मेडन स्पीच का समय ले चुके हैं। जी आप कंक्लूड करें। माननीय सभापति जी, हम जनजाति समाज सदैव राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। लेकिन आज मुझे गहरा दुख और आक्रोश है कि लोकसभा की एक वरिष्ठ सदस्य और राज्यसभा की एक वरिष्ठ महिला सदस्य ने हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति अपमानजनक और अमर्यादित टिप्पणी की है। इन अमर्यादित टिप्पणी ने न केवल महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान किया है बल्कि पूरे जनजाति समाज एवं देशवासियों की भावनाओं को भी गहरी ठेस पहुंचाई है। यह केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं बल्कि भारत के संविधान मर्यादा के गरिमा का आघात है। हमारी जनजाति समाज पूरे भारत और हर सच्चा नागरिक अपने राष्ट्रपति जी के सम्मान की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। महामहिम राष्ट्रपति जी के केवल इस देश के प्रथम नागरिक नहीं बल्कि हमारी आशा, आत्मसम्मान और गौरव का प्रतीक है। हम ऐसे किसी भी अपमानजनक आचरण की कड़ी निंदा करते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं कि देश संवैधानिक गरिमा अक्षुण्ण बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू देवेंद्र प्रताप सिंह, थैंक यू। ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री HD देवगौड़ा जी। Sir, while sitting. Respected Chairman, sir, with your kind permission, I would like to sit and speak. Sir, first of all, I would like to express my sincere thanks to the Excellency, the President, who delivered her speech in the joint parliament session. I am supremely happy